हेलो दोस्तों, स्वागत है द अभिषेक शो में। और आज हमारे साथ है मिस्टर पारस पुंडीर। वेलकम पारस भाई, कैसे हैं आप? एक नंबर। तो पारस बढ़िया। पारस अपने आप में एक खुद कमेटी में वेल नोन नाम है इंडिया में। तो पारस खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा। पारस भाई बताइए अपने बारे में। uh, okay, so my name is Paras Pundir, and I'm living in Bangalore. और मैं कम्युनिटी इकोसिस्टम में नॉट फॉर लॉन्ग, अंडर 5 years ही हूँ, बट बीन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। सो इसलिए शायद like I got pretty much a name here and there. तो मैं एक I run a community called Community Folks, which I started with Abhishek. For the background, if I have to tell you, and that community has grown big. It's a group of community builders in India वो ऐसे start हुई थी। और जो लोग हैं वो हर तरह के community managers हैं, be it a community manager from a brand like Google, Microsoft, Truecaller or something else, और a co-working space के community manager, या फिर individual community वाले लोग के कोई पेरेंटिंग कम्युनिटी वाला, कोई बुक क्लब वाला, इस तरीके के सारे तरीके के ऑल कम्युनिटी बिल्डर्स। एंड दैट्स दी वन स्पेस जो कि दैट्स माय ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, मतलब सारे फेवरेट स्पेसेस में से, because the conversation which happen are completely around community. So it all started from there, and like me getting into the domain, and then ये community आ गई, सब लोगों ने इसको अच्छे से किया, and then I got a lot of opportunities. So I have worked with 4 5 different clients उनका community setup करने में, from scratch, be it a travel company, be it a AR/VR company, or be it a pet lover community, something like that. So all different companies. Then I worked with Facebook on one of the program, which is a community leadership program. I was taking care of Bangalore chapter, और मेरा काम था कि जो भी लोग Facebook पे communities बनाते हैं, I'm supposed to bring them together, help them connect with Facebook team, and if they are facing any problem, I can all together solve that. Then I'm still working with Microsoft as a program manager, where my major role is to take care of the community and grow it from scratch. We are about to touch 5,000 members, and within last 7 months since I've joined, and it's going pretty crazy. It's called Microsoft Reactor Bangalore. So that is there, and then I have pretty much a lot of other communities, like community folks. There is growth folks, there is product folks, there is data folks, there is sales folks, and whatever the domain you listen are actually the domain community. And in some में common ये है कि I was there when they were getting started, or say the people those who were starting it, they were somewhat part of my tribe. तो अगर प्रोडक्ट फोक्स में सुहास, नंदा, इन लोगों ने स्टार्ट करा, उत्कर्ष इन लोगों ने करा, so these are the guys those who are on the top. तो वो लोग सब साथ में काम करते थे पहले, 2 साल पहले कम्युनिटी फोक्स के सब पार्ट थे। तो ये सब चीजें, अच्छी बात ये सब कम्युनिटी फोक्स से आया है। अगर ग्रोथ फोक्स आयुष चला रहा है तो वो ग्रोथ फोक्स वो मेरे साथ में रहता था, ये न्यू कम्युनिटीज क्या होती हैं, सब चीजें कर रहा हूँ। तो ग्रोथ फोक्स अभी 2 साल हो गए ग्रोथ फोक्स को, खुद की वेबसाइट है, 7 8 चैप्टर्स हैं, सब कुछ है। एक टेस्ट ट्राइब है हम लोगों की कम्युनिटी, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की। महेश है, आई मेट महेश इन वन ऑफ द कम्युनिटी मीटअप, एंड नाउ महेश लीड्स अ कम्युनिटी, 2 साल उसको भी हो गए। एंड महेश रिसेंटली होस्टेड द बिगेस्ट टेस्टर्स कम्युनिटी इवेंट कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर ओके। जेम्स बैश आया था, which is kind of a big achievement for a community, but it's a small audience, so इसलिए ज्यादा लोगों को दिखता नहीं है, इतना इतना लाइमलाइट नहीं है, but it's the craziest thing a community can ever hold. बड़ी organizations नहीं कर पा पाई which a community has done. So ऐसी कुछ communities है which I have been running, and then I also have a specific youth-centric community which is kind of my alter ego. It's called Wisdom Baba, which is all about the hustle which I go through, and I try to talk it out in a more relative words कि uh, तेरी लाइफ तू ही करेगा, sort of kind of a stuff. एंड उसपे कुछ अच्छे खासे लोग हैं, मतलब इट्स इंस्टाग्राम पेज, बट इट्स आल्सो अ स्ट्रांग कम्युनिटी होल्ड, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो मेरे साथ 50 जब फॉलोअर थे, वो तब से लेकर के आज 50,000 से ऊपर है, अब तक मेरे साथ में है। और इट्स बीन अ 4 year लॉन्ग जर्नी है। मेरे कम्युनिटी मैनेजमेंट करियर से भी बड़ी जर्नी हो गई उसकी, मतलब अगर मैं एक तरीके से देखूं ऑन पेपर तो यही सारी चीजें I have been doing. I have been working with a lot of community managers, have trained up a lot of
community builders also, which are working at different organizations as of now in our ecosystem. Organized first conference for community builders, at least in our country. I don't know if it's in Asia, but at least in our country. I got Community Professional of the Year 2020 award by one of the community management builders recognized organization called CMX. They are amazing. Right. And then just because of community, I got a chance to go out and talk at TEDx event just because I was doing good at communities, and like that was the first time I was able to call my parents to do something. Otherwise, उससे पहले वो parent teacher meeting में आते थे जिसमें कि what will happen. I'm a shit scholar. Yeah, that was Jaipur, and then my school. I was a shit academic boy. जो कभी भी academic hall के आसपास भी नहीं रहता था, उसके अलावा हर जगह रहता था. So they never got a chance to probably see me doing something good. So that was the first time. So yeah, that's majorly the community whole space which I was hosting LinkedIn Local Bangalore. I was hosting Trello Chapter Bangalore, and pretty much a lot of other things. But if you'll see the profile, you will see the community thing coming out of it. I run a community podcast. I run a community matters series, which is a interviews with community managers. We write blogs. We got posted in different publications. Yeah, so a lot of stuff in communities. That's what the major background is. Your whole introduction, community words appears lots of time, right? So that's me. What community is? Community is where my heart is. First of all, I'll say community. बस कुछ लोग हैं जिनको समझ में आ गया कि ये उनका सेंटर है, ये उनकी इंटरेस्ट है, और वो एक साथ हैं और मचाने के लिए बैठे हुए हैं. ठीक है, and they have backing of each other. They trust on each other, and then they know like if I'm gonna fall down, there is someone to lift me up. Okay, that sense of belonging is there. They don't feel कि I'm alone. They know कि मेरे पास में कुछ लोग हैं. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है जो कि है नहीं सोसाइटी में, वो है कम्युनिटी. अगर सच में है कहीं पे, वो it's that bond which defines the strongness of the community. So that's what is community, I guess, for me. तो अगर डिफाइन करें तो कम्युनिटी को कि सिमिलर सेट ऑफ माइंड का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनता है, राइट? बिल्कुल अगर मैं टफ वर्ड्स में डालूं, लाइक माइंडेड पीपल विद अ सिमिलर सेट ऑफ गोल्स and like they want to sort of help each other and like mindedness and stuff like that. But yeah, but overall core it's that brotherhood, it's that cult, so fraternity. मतलब पारस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? अगर पारस belong from राजस्थान में, right? What tier 3 city, and proud to say that it's fun to grow from 0 to 1. like मजा आता है उस चीज को करने में. तो there's a small town called Dholpur. It's nearby to Agra. That's how I can tell people. It's on the border of Rajasthan, and nothing that famous about my place apart from dacoits. If you have heard about Pan Singh Tomar, Phulan Devi, movies भी बनी हुई है बहुत सारी. तो हाँ, तो अगर वो देखिए तो पता चल जाएगा कहाँ से है. और वहाँ से I started. I've done all my schooling from there, and I learned a lot. So मेरे schooling से I guess, so I was actually writing this question, like I was putting this question because I run a series called Thoughtful Thursdays in community books. So it's all about the human side of community managers. Basically, I'm trying to explore that because all other days we talk about community management. So it's just one day we're talking about this thing. So there is a post upcoming one which I discussed with one of the community members. उसका ही idea था, वहाँ से आया मुझे कि when was the first time you got this opportunity to manage a community or to lead a community or to lead a group. So मुझे वहां से याद आया कि मतलब हाउस कैप्टन और वो क्लास मॉनिटर तो मैं शायद सेकंड थर्ड क्लास से बन रहा हूँ. I was that not bright kid but that connected और सबसे बात कर सकता है वाला kid, I guess. हाँ, कि सब संभाल लेगा, ये देख लेगा, ठीक है. मतलब मैं I was the school captain, the 12th, एंड सब जानते हैं, मतलब पियोन से लेकर के बस ड्राइवर से लेकर के सब लोग जानते हैं, और एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड विद मी ऑन फेसबुक. तो मैं वो वाला बहुत
बहुत सबसे बातें करने वाला इंसान, हाँ। और वो सब तो मैंने किया, बट मुझे याद है कि शायद 7th या 8th क्लास या समथिंग, समवेयर अराउंड दैट, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आई यूज्ड टू कॉल फ्रेंड्स और वो लोग घर पे आते थे, एंड आई यूज्ड टू मेक ब्रेकफास्ट करते थे सैटरडे को। मुझे वो मतलब याद नहीं था कभी, बट मेरे को याद है कि कैसे कैसे वो फ्रेंड्स गैदरिंग from that time I'm doing, and without any idea of community management. I had no idea of community management until my college finished. So I just know, I just knew that I'm fairly good with people, like Okay. that's it. So that realization, now I can feel that if I think now and I feel कि कितने पीछे से मतलब I have had this in my life, the impact of people and my impact on people. तो मतलब आप बहुत पहले से सोच सकते हो, मेरे अभी भी जैसे जो जो मेरे प्रिंसिपल और जो मेरे चेयरमैन है, दे आर लाइक स्कूल प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, दे आर लाइक रियली क्लोज टू मी। और अभी भी अगर कुछ ऐसा होता है अराउंड स्कूल या फिर कुछ मेरे बैच या मेरे आसपास के बैच, तो आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जिसको पिंग करा जाएगा पूछने के लिए, पारस उसका नंबर है क्या, बिकॉज दे माइट फील कि मैं कनेक्टेड होऊंगा। तो यू कैन गो, बट इट्स 20 years of friendship. It's today's friendship day. Happy friendship day everyone. So it's the Same to you. first Sunday. Yeah, और आपको भी Sheikh, we have been together for more than 4 years, I guess. मेरे को ऐसा लगता है 4 or 5 years, right? So हाँ, मतलब ये तो वहां से शायद शुरू हुआ था लीडरशिप रोल्स लेना और लोगों को साथ में लेके चलना और ये सारी चीजें। फिर that came into college से starting from nowhere, then getting into community, what college का e-cell, then heading that e-cell, फिर college की football team, then heading that football team, then getting being awarded as Mr. Popular by the end on my farewell. The reason is because I'm fairly connected with people, and people love to talk to me, and I love to talk to people, and I love to add value to them. मैं मेरे हॉस्टल से निकलता था, मेरे को मेरे हॉस्टल से कैंटीन तक जाने में कुछ 20 मिनट लगते थे, बिकॉज आई एम सपोज टू शेक लॉट ऑफ हैंड्स एंड टॉक टू लॉट ऑफ पीपल इन बिटवीन, जो कि 50 मीटर भी नहीं है, और उतना टाइम 20-25 मिनट में आराम से पहुंचता था मैं बातें करता हुआ। तो दैट यूज्ड टू बी माय कॉलेज, लॉट ऑफ म्यूचुअल्स, yeah, that used to be the journey. That's how it started, like what you asked. So if I'm talking about your initial days at Dholpur, वो कैसा था? Okay, कौन so कौन है फैमिली में, कौन है? okay, so I have 2 elder sisters. They both live in Bangalore, and mommy, papa. That's it. So both of them are employed, were employed. Both my father was a bank officer, like senior chief manager in Punjab National Bank, and my mom was she's a principal, like, and Hindi majors. So Hindi भी काफी अच्छी थी, मतलब तो अभी मिक्स हो गया सब कुछ। और माय सिस्टर, सो आई एम फ्रॉम अ बैंकर फैमिली। मेरी दादी, मेरी बुआ और माय फादर, मेरी बड़ी बहन जो है वो भी अभी बैंगलोर में, शी इज इन बैंक, शी इज अ मैनेजर इन यूको बैंक इन बैंगलोर। तो वो है, और माय अदर सिस्टर, she's a consultant at SAP, like she's a consultant in Boeing, but works on this technology. एंड सिमिलरली मेरे जीजू वगैरह सब लोग आईटी वाले हैं। तो यही वाला एक सिस्टम है, इसी का वर्किंग क्लास फैमिली, एंड मी फिनिशिंग इंजीनियरिंग, तो मूविंग टू द सेम साइड, या फिर उधर कहीं पूरा माहौल था तो वही सब चीजें करी हैं। तो धौलपुर बहुत छोटा टाउन है, नो कवरेज, राइट, नो एक्सपोजर इज प्रोबेबली, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आई गेस माय स्कूल and my chairman and the few people there, I guess through them I probably got a bit of exposure in life, or probably I can see, okay, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। Otherwise it's fairly a backward town, I'll say, like it's not like there people are still there जो वहाँ पे थे, अभी भी वहीं पे कुछ फ्रेंड्स हैं जूनियर से जो बहुत ही महान काम करके ऐसे कोई कोई कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं पे ऐसे भी दोस्त हैं। तो ऐसी बात नहीं जिनके साथ में रहा हूँ, जिनके साथ में घूमा हूँ, तो कुछ ऐसे भी हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो लंदन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वाले नहीं है मतलब, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो कुछ मचा रहे होंगे, बातें कर रहे हैं। तो पूरा फुल क्राउड था, बट हाँ, इतना एक्सपोजर नहीं, ऑलमोस्ट नील एक्सपोजर। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर, आई गेस, एक्सपोजर। धौलपुर में +2 वहां से किया, राइट? हाँ, सब कुछ 2nd से 12th तक एक ही स्कूल। ओके, और उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए जयपुर जयपुर जी। कौन सा कॉलेज? तो कॉलेज
कॉलेज तो अभी शायद उसका नाम वही है कि बदल गया है, कुछ ऐसा चल रहा है, बट नहीं है कॉलेज है। कॉलेज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाज इन सीतापुरा। और उस टाइम पर ऐसा बोलते थे कि वो टॉप 5 में था उस जयपुर के अराउंड। एंड लाइक I'll seriously say कि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब I don't feel proud about the college, but Okay. because of the people, क्योंकि जो लोग थे ना, और जो मेरे ख्याल से जो हमारे से पहले जो मेरे सीनियर्स थे, pretty kick ass, like kick ass people। तो उस, और मेरे को लगता है कि लोग ही डिफाइन करते हैं। I guess Stanford is not Stanford just because of the academics. I guess it's the cream of the people which goes there, and like which brings the energy, the diversity, which actually टेक एवरीथिंग एट पार। पता है कि यहाँ पे एक काउंसिलमैन और दूसरा चांसलर और तीसरा कोई यूएस सीनेट बैठा होगा, इसी टाइप के लोग होते हैं वहाँ। तो सिमिलरली मेरे पास लगता है माय कॉलेज वाज I'll not talk about the college part of college, but I'll talk about the people part of college, which was crazy. So I've got like some finest people out of that space, and that's how my college was, and a lot of learning. Yeah. तो कॉलेज से देन आफ्टर मूव टू बैंगलोर। कॉलेज फिनिश करा तो मेरे एक सीनियर थे जो कि मेरे से पहले ईसेल हेड करते थे, उनके साथ में मिलकर के, और एक मेरे जूनियर थे, उनके साथ मिलकर के कोवर्किंग स्पेस हमने स्टार्ट करा था। तो वो जयपुर उसका में। नाम था सी, जयपुर में। और लकीली यू वोंट बिलीव दैट वाज द फर्स्ट वन इन द राजस्थान एट दैट टाइम, क्योंकि 2013 में चालू करा था हमने। ठीक हाँ। है। तो बट डिडंट वर्क आउट दैट वेल। तो मैं बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर और ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश माय इंजीनियरिंग, तो मेरी इंजीनियरिंग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में हुई है। मैंने बताया आपको मैं एकेडमिकली कितना स्ट्रांग हूँ, राइट? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा है थोड़ा। तो 2014 तो 4 साल की में, इंजीनियरिंग 5 साल में कंप्लीट हुई। हाँ, 4 की होनी 8 में चाहिए थी, 5 में कर दी मैंने। आई फील प्राउड। मतलब जिस हिसाब से मेरे बैकलॉग्स थे, तो ओके। मेरे को बैकअप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं फुटबॉल टीम में भी था और सिर्फ बैक ही बैक देता था। तो काफी 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 लोग जानते थे इस चीज से कि हाँ, पारस बॉस की बैक है, बहुत सारी बैक है, मतलब दर्जन में है। तो और उन्होंने वो निकाल के वो खत्म भी कर दिया, तो ऐसा वाला सीन था। तो काफी काफी अच्छा सा वो है स्टोरी। बट हाँ, फिर मैंने वहां से वो खत्म करा, और फिर मैं 14 में अप्रैल अराउंड आई केम टू टू बैंगलोर फॉर अप्रैल 2014। ओके। आई केम टू बैंगलोर। या वर्किंग में स्टार्ट किया तो वो क्यों बंद हो गया, मतलब क्या रीजन है उसके पीछे? क्योंकि कोई एक्सपोजर ही इंजीनियरिंग। नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, वहां कोई एक्सपोजर। और आपको एक मसला बताता हूँ, उस कोवर्किंग का जो मैं जो टाइटल था ना, तो जो मेरे जो जो दूसरे जो जब मैं बता रहा हूँ, जो सीनियर जिनके साथ चालू करा था, उन्होंने उस टाइम पे मैंने कम्युनिटी मैनेजर वर्ड सुना था, एंड ही एक्सप्लोर्ड दैट, एंड ही वाज लाइक कि कम्युनिटी मैनेजर होता है जो लोगों के साथ में रहता है। उन्होंने बोला कि ये सही रहेगा तेरे लिए। हाँ। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम। कभी मैंने इतना रियलाइज नहीं करा कि इधर ही जाना है, बट वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव जस्ट हर्ड कि क्योंकि कोवर्किंग स्पेसेस में कम्युनिटी मैनेजर्स होते थे, ये डेजिग्नेशन होती थी। तो वो थी चीज। बट हाँ, वो बंद इसलिए हो गया क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था जयपुर में यार, मतलब उस टाइम पे तो बहुत। और वो हम लोग का भी एक्सपेरिमेंट था। लोगों को पता भी नहीं था कोवर्किंग होता क्या है। कुछ भी नहीं है, बोल रहा हूँ ना, पूरे स्टेट का पहला था, तो क्या ही पता होगा, कुछ भी नहीं पता था। अभी भी तो एक दो ही है मतलब, और वो भी इकोसिस्टम बन ही रहा है वहां पे। अभी 6 साल हो गए हैं। अगर तो 2013 में बन स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल से वो इंडिया में पहला होगा। नहीं नहीं नहीं, जागा था ना यार। नहीं नहीं, 13-14 के बाद तो मेरे ख्याल से 91 स्प्रिंग बोर्ड स्टार्ट हुआ था, जो इंडिया का मेरे ख्याल से 91 पहला। तो उसके बाद में हुआ ना। और जागा हाँ। था, जागा यहाँ पे अच्छा। बैंगलोर वाला, बैंगलोर का जागा जो है वो बहुत पुराना है। वो शायद अच्छा। इकोसिस्टम की शुरुआत से ही है, वो चाय कॉफी टाइप के टेबल पे था, काफी काफी सही है। जागा जो है यहाँ का ओल्ड कल्चर बिल्कुल। बट हाँ, और 91 आप जितने भी नाम बता दो सब उसके बाद में चालू हुए हैं, ट्रस्ट मी। हाँ। मतलब मैं कभी भी सोचता हूँ बैठ करके कि अरे यार कभी पुल कर लेते उसको तो मजा ही आ जाता, अलग ही सीन होता। हाँ अच्छा, तो वहां हाँ पे फिर जयपुर, राइट? हाँ, जयपुर, जयपुर से बैंगलोर। और बैंगलोर में आया था बिकॉज कंप्यूटर साइंस वाला बंदा हूँ। तो बनो बनो फिर डेवलपर तो मैं बन नहीं सकता था, क्योंकि मैंने हाँ। फर्रों से पास किए लैब। तो मैं इंजी वही बन सकता था, टेस्टर। तो मैं टेस्टिंग के लिए आया। मैं माय सिस्टर वाज आल्सो इन टेस्टिंग, so she knew like it's fairly easy, I feel like, to crack. Not the job, I feel job is really difficult because I got into the community and then I realized the uh, the the specialty you require in testing, that is different. मैं कभी टच नहीं कर सकता लेवल, बट वो जो प्रोसेस था टू बिकम अ टेस्टर वाज फेयरली इजी इन एमएनसीज थोड़ा। और कोर्स वो भी ऐसे था, तो मैंने वो करा। 14 अप्रैल में आ गया था, अप्रैल से लेकर के अप्रैल एंड तक
मतलब ऐसे कितना 8 महीने हो गए, 8। 14-15। हाँ, 14 के एंड तक, 14 के अप्रैल में आया था, 14 के एंड तक मैंने यही चीज करी, क्या बोलते हैं, मैं कोचिंग वोचिंग करी यहाँ पे, एक कोचिंग थी, नाम ही भूल गया मैं। तो काफी फेमस कोचिंग है, सबसे फेमस कोचिंग है, मतलब हर मोस्टली अच्छे अच्छे टेस्टर्स वहां से जरूर पढ़ के आए हैं। उस टाइम पे तो बहुत सारे होते थे, मार मार गए हुए हैं, तो वो काफी अच्छी कोचिंग, 200 लोगों की क्लास होती थी। कुछ नहीं, वहां भी बकवास करी मैंने तो। मैं अच्छा अच्छा खासा एक फुटबॉल टीम मिल गई थी, उनके साथ फुटबॉल खेलता था। वो भी पढ़ता था, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई घर वाला भी देख सकता है इसको, तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ता था बट मैंने उस टाइम पे एक दो स्टार्टअप की उनमें वर्चुअल इंटर्नशिप भी करा था। तो ओके। ये सब चीजें, और उसमें मैं क्या, वही मेरे को, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सब समझ में आता था, कंटेंट समझ में आता था बेसिकली, क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ, मुझे लगता था कि मेरे को समझ में आता है ये इकोसिस्टम। तो मैं ये सब मैंने काफी करा उस टाइम पे। प्रीसीड करके एक स्टार्टअप थी, उनके साथ में थोड़ा बहुत काम किया था। एक हाँ ये थी, और एक और याद नहीं आ रहा, एक और तो कुछ था। तो हाँ, उस टाइम पे ऐसे काम करा था, तो ये पैरेलल चलता रहता था। फुटबॉल खेलता था और यहाँ कोचिंग जाता था, और दबा के इंटरव्यूज देता था। मतलब मैं कितनी, आई गेस आई गेस एक्सेंचर, तो आई क्रैक्ट एक्सेंचर, वो भी मेरे को कैसे कॉल आया सुबह सुबह जनवरी में। तो और वो बहुत मेहनत, और वो बहुत घटिया दिन थे, मतलब अभी जैसे अभी तो घर वर है, मेरे जूनियर्स आते हैं, उनको सीधे घर मिलता है, वहां पे मैं पीजी में रहता था, और पूरा अजीब सा सीन एकदम। पीजी भी इसी तरीके से होते हैं, क्या होता है, मतलब फुल ऑन मस्त स्ट्रगल, मतलब बोलने लायक स्ट्रगल है, बढ़िया। और सुबह सुबह 4 बजे उठ करके भी कभी कभी इंटरव्यूज के लिए, मतलब लाइन में, क्योंकि फर्स्ट पहले पहुंचना, तो इसके लिए भी गया हूँ। तो काफी काफी घिसाई है, कुछ 35, शायद 35 अराउंड इंटरव्यूज होंगे, 30 तो होंगे जिनसे रिजेक्ट हुआ होगा मैं। इसमें से किसमें तो कितने में हुआ? हुआ ही नहीं, मतलब मैं वहां तक चला जाता था लास्ट तक, तो कुछ ना लास्ट। कुछ हो जाता था बीच में। हाँ, मैं कई बार गया हूँ लास्ट तक, मतलब 30 में से मैं बोल सकता हूँ मैं 10-11 बार लास्ट तक गया हूँ। पर कुछ ना कुछ हो जाता था। कई बार तो मेरे को उन्होंने भी बोला, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस, शायद पता है क्या बता देता था, मैं एक्सपीरियंस ये स्टार्टअप और ये इकोसिस्टम, और उस मैं थोड़ा जैजी होकर के बात कर लेता था, ओपननेस के साथ में। एंड आई गेस दे वर लुकिंग फॉर अ प्योर फोकस्ड एम्प्लॉय, नॉट समवन की वो जो बातें पेलने के लिए आ रहा है, ऐसा तो तो उनको। फोकस ना बोल के उसको ये बोलेंगे कि उनको चाहिए कि ये जो बोलो वो करने वाला एम्प्लॉय चाहिए। हाँ, और मैं शायद उनके साथ बैठ करके बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर, मतलब मेरे को ऐसे याद है कि एक मैं पहला ही वाला था, कोई कोई अरेबिक कंपनी थी, मुझे मेरे घर के पास में, अब तो इंदिरा नगर में, पहले वहीं दूर रहता था। तो उनके उसमें मैं लास्ट राउंड तक पहुंच गया, और और मेरा इंटरव्यू उनके साथ में, मतलब जो फाइनल इंटरव्यू होता है, जो 3 लोग हैं, और मैं लास्ट राउंड तक कैसे पढ़ करके नहीं पहुंचता हूँ मैं आई वाज रियली फेयरली गुड एट चीटिंग। मैं काफी अच्छा हूँ उसमें, ओके। मतलब मैं, मतलब स्मार्टनेस चाहिए होती होगी तो शायद मैं कर लेता हूँ अच्छे, तो मुझे ऐसा लगता है, बट थोड़ा थोड़ा दिमाग और सब कुछ यूज करके सब कुछ चीज हो जाती है, तो मैंने कैसे भी करके क्रैक कर लिया, ऐसा मान लो आप। और मैं पहुंच गया हूँ, मैं टॉप वाले उनके साथ में बैठा हुआ हूँ, और उनके साथ मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ। वो अपने बेटे के बारे में बताने लगे मेरे को, और फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि बस आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये कॉर्पोरेट और इनसे में आना चाहिए, यू शुड गेट बैक टू स्टार्टअप्स एंड ऑल, मतलब ये वाला दिया। अब खुश हो कि रोऊं, ये भाई साहब, मतलब इतने दिन की मेहनत में करवा करके आप यहाँ पे आ रहे हो और मुझको बहुत प्यारी बातें करके भेज रहे हो, तो वो वहां से ऐसा सही था। फिर मुझे काफी कुछ समझ में आया, मैंने हेयर कट लिया था इससे बेसिकली, क्योंकि मेरे को सब इतना प्रेशर हो रहा था कि भाई तू, तेरा कैजुअल एटीट्यूड है, ये वो फॉर्मल्स वॉर्मल्स लिए थे, मैं कैसा था, मैं मतलब आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। और फिर मैं एक दिन सो रहा हूँ और मुझे कॉल आ जाता है, और उससे एक दिन पहले मैं एक इंटर्नशिप का ऑफर लेकर के आया था। ठीक है, ओके। इंटर्नशिप कितने मतलब कॉडियो में इंटर्नशिप मिलती थी उस टाइम पे, तो मतलब ऐसे जैसे अभी के इंटर्न्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ कितना पैसा दोगे पहले थोड़ी पूछते थे, काम पूछते थे, पहले तो पहले काम तो कर लेगा, हाँ। सर्टिफिकेट। हाँ। हाँ, काम काम कर बस तू, और कुछ लगेगा तो दे देंगे। हाँ। तो फिर वहां से मैं वो देकर क्या, मेरे को आज सुबह आज जाना है 11 बजे वहां पे, 9 बजे मुझे कॉल आता है कि हाय, मैंने बोला हाय, और मैं कभी भी नहीं उठा, मतलब नॉट अर्ली गो गेटर, तो मैं सो रहा हूँ बढ़िया। और वो बोलती है कि हाय, आई एम कॉलिंग यू हैव अ ज्वाइनिंग फ्रॉम टुमारो। मैंने कहा दिमाग मत खराब करो, कौन बोल रहा है तो मैंने ऐसे बोल दिया नींद में, लोगों को मजे ले रहा है मेरे, क्योंकि उनको पता है मैं कितने इंटरव्यूज देता हूँ और क्या सीन चल रहा है, और फुल ऑन सीन खराब है। तो क्योंकि मैं बैलेंस करने के लिए सिर्फ फुटबॉल खेलता था, और दोस्त मेरे कुछ रहते थे यहाँ पे, उनसे मिलता था, तो कुछ भी काम नहीं। तो वो बोली नो सर, यू हैव दिस थिंग, और आपका एक्सेंचर में हो गया है वो, आपको कल आना है। तो फिर मैंने उसे स्टार्टअप वाले को फोन करा, फिर मैं गया, फिर एक्सेंचर ज्वाइन करा एज अ टेस्टर। जो टीम थी, एक्सेंचर भी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी, 5-6 महीने था मैं वहां पे, शायद मई से जून जुलाई तक ही था, इतने टाइम ही था, बट काफी सही जर्नी, मतलब एक्सेंचर एकदम एकदम मजा आ गया था। कॉर्पोरेट भी मस्त होता है यार, और मैंने बहुत बहुत ही
मतलब आप ये सोचे एक्सेंचर के अंदर, मैं बता सकता हूँ ना वाली बात, ये बतानी थी हाँ, नहीं बतानी थी? ओके। तो ये एक्सेंचर क्या था, एक्सेंचर में काम तो होता था, ठीक है, हाँ, और मेरी जो टीम थी, उसमें शायद एक आधी कोई लोग होंगे जो मतलब जो हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बाकी पूरी टीम वो थी, मतलब हमारी साउथ इंडियन टीम थी, तो बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, पूरे दिन भर इंग्लिश में बात, चाय पानी पीने के बाद भी इंग्लिश में करनी पड़ती है, और मतलब हर चीज इंग्लिश में, इतना मतलब एकदम हो जाता था कि मैं कुछ शुरुआत के कुछ दिनों में इतना इंग्लिश हो जाती कि शाम को मैं निकलता था, किसी को दो को फोन लगा के वॉक करते हुए घर जाता था और बोलता था थोड़ी देर बात कर ले, हिंदी में बात करने का मन है। ठीक है, तो हिंदी हिंदी बोलने की इतनी फीलिंग चाहिए थी क्योंकि बात नहीं हो रही थी किसी से। मतलब मैंने मैंने मेरी लाइफ में इतनी इंग्लिश में लंच तभी किया है। या ठीक है, मेरे ख्याल से वो टीयर थ्री सिटी के सारे बच्चों के साथ ये वाली प्रॉब्लम हाँ, होती है, या उनको आई डोंट इंग्लिश नो, बोलना होता है ज्यादा, वो थक जाते हैं हाँ, बेचारे, बोल के थक जाते हैं। टू मच, और फिर मैं बोलता भी ज्यादा हूँ, आपको पता है, तो मैं उस टाइम पे भी ज्यादा बोलता था, तो सब कुछ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन, हाँ, हाँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि चाय, वाटर, कॉफी, मतलब फूड है, वो वाली चीज चलती थी उस टाइम पे, तो तो वो काफी फनी था, बट मैंने उस टाइम पे जो मैंने अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग वाला जो पार्ट है, मैंने ना काफी जो को करिकुलर चीज होती है उसमें बहुत कुछ किया है, मतलब हमारी मेरे जो टीम था, हम लोग का आई वॉन बैडमिंटन में बैडमिंटन डबल्स या सिंगल्स, कुछ डबल्स था शायद, टीटी में डबल्स जीता मैं, कुछ कोई ड्राइंग और कुछ इस चीज का ऐसे कंपटीशन कुछ तो था, वो भी जीता मैं, कुछ एंकर अवार्ड था, तो मैंने पूरा ओडीसी जो होता है उसका पूरा एंकरिंग वैंकरिंग देखी, फुटबॉल में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट जितवा दिया, वॉलीबॉल भी जीते हम उस साल, और ऐसे जो भी को करी फैशन शो, आई वाज दी लाइक, क्योंकि मेरे मुंह पे कुछ और लगा हुआ था इसलिए मैं मेल वाला फैशन आइकन जो होता है वो भी जीत गया, मेरी शक्ल देखते तो नहीं करते लेकिन कुछ लगा हुआ था तो वो भी जीत गया मैं, तो मतलब आप सोचो कि वो 4-5 महीने फुल मजे और काम और ये वाली साइड सब चीजें हैं, तो ये सब कनेक्ट हो गया था, काफी अच्छे दोस्त बने थे मेरे वहां से, अभी भी है कुछ दोस्त जो वहां से बने हैं, बट काफी सही टाइम आई हैव स्पेंट देयर, और तो फिर वो खत्म हुआ तो एक्सेंचर के बाद अगेन टू स्किलेंजा। एक्सेंचर के बाद नहीं एक्सचेंज के बाद स्किलेंजा तो बहुत लेट आया, ये तो 2015 में ही हो गया, स्किलेंजा 2016 हाँ, जुलाई में चालू हुआ है, उसके बीच की भी तो ओके। भसड़ है, मतलब उसके बाद 5 महीने job के लिए रुके हो। मतलब वो दिसंबर तक बात चला, दिसंबर 2014 तक। नहीं, जनवरी से जून या जुलाई तक ही चली है, जून तक चली है, 6 महीने होते हैं ओके। ना, जून, हाँ, हाँ, 6 महीने, तो 6 महीने चली जून तक, जुलाई में फ्री हो गया, कुछ भी नहीं है करने को, और सर्वाइवल भी डिफिकल्ट होता है, मतलब मैं हाँ। कॉलेज में जिस तरीके से मेरे को इजीनेस थी विद रिस्पेक्ट टू पॉकेट मनी और विद रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ मनी जब सोर्सेज, तक आप वो पढ़ते सब, हो तब तक तो वो पापा पैसे हाँ, भेजते रहते हैं ना। मतलब मेरे घर में 4 लोग थे यार कमाने वाले शायद उस टाइम पे, जब मैं कॉलेज में हूँ, बोथ ऑफ माय सिस्टर्स, मदर एंड फादर, तो आप सोचो कि मैं तो मतलब मैं मेरी ऐश है उस टाइम पे, हाँ, मतलब हाँ। आई कि मतलब मैं उस टाइम से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ फैशन एंड न्यू और मिंत्रा के, तो आप वो लोग जानते हैं वो छोटी वाले का ऑर्डर है, मतलब पीपल डिलीवरी वाला ऑल्सो नोज मी कि हाँ वो उतने करता है, तो मतलब उस टाइप की लाइफस्टाइल थी कॉलेज में, और उसके बाद में तुरंत डाउन आ जाना, क्योंकि बैंगलोर में आई एम स्ट्रगलिंग, कुछ चीजें नहीं हाथ में, तो जून में छूटा मेरा, और फिर उसके बाद मैं जुलाई अगस्त ऐसी मैं घर पर पे गया था, दिवाली पे मैं घर गया था, तब तक शायद उनको नहीं पता था, कुछ तो हुआ था कि कुछ सीन हो गया था, मतलब और मेरे पास भी जॉब नहीं थी, कुछ ऐसा सीन चल रहा था, तो फिर मैं लौट करके आया बैंगलोर, कंप्लीटली ब्रोक, और आई वेंट टू आई फाउंड आउट की इंटर्नशिप है एचएसआर में, मेरे घर के पास में थी, तो आई हम्म। टुक द बाइक एंड आई वेंट देयर, उनसे मैंने बात करी कि मतलब उनके ऑफिस में चला गया था, स्टार्टअप की छोटी सी टेक्सनोक करके, तो उनसे मैं मिला, उनको मैंने बोला कि I'll join in, मतलब सोशल मीडिया और कंटेंट वॉन्टेंट ये सब चीजें देखूंगा, और वट एवर यू फील लाइक यू जस्ट पिक मी इन, तो शायद अंडर 5,000 या कुछ उसके अराउंड की इंटर्नशिप थी, ठीक है, तो फ्रॉम अ गुड लीप टू दिस, ठीक है, एंड दैट टू बीच में 2-3 महीने निकले, तो टेक्सनोक नाम था उसका, और मैंने शायद वो एक ही महीना प्रॉपरली करी, उसके अगले महीने तक मेरे को एक और जो मेरा रूम पार्टनर था, जो मेरा कॉलेज जूनियर है, वो स्पर्श, तो वो जहाँ पे कोचिंग के लिए जाता था, तो उसका जो फाउंडर था जो कोचिंग कराता था, ही वांटेड टू ग्रो हिज कोचिंग इंस्टीट्यूट टू एज अ ब्रांड, तो उसको कोई चाहिए था, एंड आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ आइडियाज, पढ़ता पढ़ता रहता था, तो मैं उससे मिला, तो अपना सीन उनसे सेट हो गया, तो मैंने वो छोड़ दिया 1 महीने में, और मैंने वो ज्वाइन कर लिया, उसका नाम था डेव्यू, इट वाज अ पाइथन इंस्टीट्यूट, तो मेरा काम था टू टेक केयर ऑफ द होल मार्केटिंग ग्रोथ एवरीथिंग, सारे प्रोसेस सही करना, तो मैंने डेव्यू में काम करा फ्रॉम शायद जनवरी या जब से लेकर के मई 2016 तक,
5 महीने वहां पे काम किया। ठीक है, वी वर्कड प्रीटी वेल, वी हैव ग्रोन इट आल्सो, अच्छा हो गया था, अच्छा चल रहा था। राम वाज द फाउंडर, प्रीटी नाइस गाय। और फिर मैंने उनको भी छोड़ दिया, और देन आई रिमेम्बर इट्स सच अ गुड स्टोरी। क्या? 5 राम के महीना, साथ 5 महीने? 5 महीना तो जनवरी 2016 से मई 2016, मेरा बर्थडे के अराउंड मेरा थोड़ा मूड हमेशा चेंज होता है, तो शायद मई में बहुत बहुत रियलाइजेशन होते हैं मेरी लाइफ में। जब भी मेरे को ऐसा लगता है मेरा साल में मेरी बर्थडे के अराउंड खत्म होता है, मतलब न्यू ईयर इज नॉट अ न्यू ईयर फॉर मी, आई गेस मई 25th इज माय न्यू ईयर। तो मैं उसके अराउंड बहुत सोचता हूँ कि क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या चल रहा है वो, फिर मैं कुछ उल्टे सीधे डिसीजन लेता हूँ। तो सारे ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन मेरे के बाद में ही हुए हैं। तो ये चीज हुई, उसके बाद में मेरे को ना आई गॉट दिस पिंग फ्रॉम स्किलेंजा की जो एचआर थी मेगा, शी इज अ रियली गुड फ्रेंड, उनसे पिंग आया था। लिंक्डइन पे मैंने रिप्लाई करना भूल गया था, लेकिन फिर मुझे फेसबुक पे पिंग आया शुभेंदु का। ठीक है, एंड आई गॉट कनेक्टेड विद शुभेंदु इन 2013, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो मेरे को इसी मतलब कि बैंगलोर इकोसिस्टम में शुभेंदु है, उससे कनेक्ट, तो मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तब से कनेक्टेड था, कभी बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला और लड़के, चलाता था, राइट? हाँ 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 हाँ, तो उस टाइम पे तो उन्होंने मेरे को लिखा है ऐसे मैसेज, और लड़के क्या चल रहा है, आउट ऑफ नोवेयर। तो मैंने कहा सब बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने कहा आजा कुछ ऐसा ऐसा काम है, कुछ काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे तो क्या अपॉर्चुनिटी तो हाँ ही करना होता है, ना तो ऑप्शन ही नहीं होता किसी चीज का। आई वेंट देयर, काफी सही वो था, गन्ने की शॉप थी, जूस की शॉप पे खड़े होकर के हम इंटरव्यू, उन्होंने मेरे से बात करी। I saw like how he was damn connected with people। कोई एक मतलब कोरमंगला की रोड पे खड़े हैं हम, और कोई इधर से बंदा आ रहा करे शुभेंदु रिमेम्बर मी, ऐसे 2 बार हो गया 15 मिनट के बीच में। मतलब 2 लोग अलग से ऐसे रोड पे चलते लोग बोल गए शुभेंदु, मैंने कहा ये क्या आदमी है भाई, मतलब पीपल पीपल नो हिम लाइक क्रेजी, मेरे को ऐसा मिला है। मैंने बोला शुभेंदु, मैंने कहा कि ये दीज आर नॉट पेड पीपल राइट, मैंने कहा ये कुछ सीन तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है ये। तो बोल रहे anyway, मैं जानता हूँ कोरमंगला बहुत स्टार्टअप सेंट्रिक था ना उस टाइम। तो फिर मैंने जुलाई से वो ज्वाइन करा स्किलेंजा। चेंज ऑफ माइंड हो गया शायद, शुभेंदु का पर्सनली भी काफी हाथ है मेरे थॉट्स को चेंज करने में, आई रियली फील, क्योंकि कम्युनिटी मैनेजमेंट, आई डिडंट लर्न कम्युनिटी मैनेजमेंट मच ऑन जॉब, बट आई लर्नड इट थ्रू हिम, मतलब बेसिकली पीपल मैनेजिंग एंड डूइंग दैट स्टफ। ठीक है, तो फ्लॉलेसली, तो आई गेस ही इज फेयरली गुड एट दैट। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और फिर जून 2016 से वो चालू हुआ। फिर आई गॉट इनटू द इकोसिस्टम बैंगलोर वाले, तब से चालू हुआ एक्चुअल में, जुलाई 2016 से सब सारा गेम जो है। ओके। और आई गॉट इनटू द इकोसिस्टम। मैं कनेक्ट हुआ था जब स्किलेंजा में पारस ज्वाइन किया था, और हाँ सुनील ने फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि वन हाँ, ऑफ आवर इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली। तो यस हाँ, तो कोई भी हो अगर यस, दिल्ली में मिलना चाहता है तो कमेंट बिलो। हाँ तो मुझे शुभेंदु, तब मैं फ्रेंड नहीं था फेसबुक पे, और 4-5 लोगों ने वहां पे टैग कर दिया मेरा नाम। मैंने कहा भाई हाँ कौन है, कहाँ से आ रहा है, आई डोंट नो। बट अगेन, मैं भी दिल्ली में कम्युनिटी में एक्टिव था, तो फिर समुंदरी का मैसेज आया, हाँ, फिर तुम्हारा मैसेज आया, फिर हम लोग चायोस में मिले थे सीपी आए में। तो मिले थे, पुनीत भी हाँ, आया था ना। सीपी पे आया था, हाँ और एक हाँ, विकास भी आया था तो शायद। हाँ तो हाँ, पहली अरे बार यार, बात हेल ऑफ वहाँ अ पे। टाइम, हेल ऑफ अ टाइम। तो हाँ, आई गेस वो 2017 की स्टार्टिंग है, जब मैं ट्रैवल कर रहा था दिल्ली उस टाइम पे। 27, राइट राइट। तो शायद उसके जैन अराउंड, टाइप का टाइम था। हाँ जैन फेब के टाइम से सर्दी थी, मुझे याद है थोड़ी सी, इसलिए। तो पारस पारस बोला था यार बहुत ठंड है दिल्ली में। हाँ, बट वो तो क्रेजी था, मतलब हाँ, वो सो स्किलेंजा जो रहा है ना, तो आई गेस अभिषेक स्किलेंजा मेरे लिए काफी स्टेपिंग स्टोन वाली चीज रही, टू गेट इनटू दिस इकोसिस्टम। पारस से मिला, और मेरे ख्याल से उसके बाद में पारस ने कनेक्ट कराया मुझे अक्षय से। हम्म, अक्षय ने फिर उसके बाद स्कैलेंजर्स में सबसे कनेक्ट में था। हाँ, मस्त था वो टाइम। हाँ, क्रेजी था, तो आई गेस वही स्टार्ट थी, और मैं काफी लोगों से कनेक्टेड हो गया, काफी इकोसिस्टम में भी आ गया, मतलब ऐसा हो गया था कि सब सब मेन मेन जो लोग थे उनसे मिलने लग गया था, सब चीजें हो गई थी, तो काफी समझ में आने लग गया था इकोसिस्टम कैसे काम करता है। फिर मेरे को एक कम्युनिटी मैनेजर का मीटअप करके श्रेयस और मोहम्मद रफी, श्रेयस नारायण कुट्टी जो हैज गीक में था, और मोहम्मद रफी, मैं भूल गया, मतलब वो स्टार्टअप का नाम भूल गया मैं, बट रफी अभी भी लाइक इज अ गुड फ्रेंड नाउ स्टिल। तो वो लोग ने कुछ मीटअप ऑर्गेनाइज करा था, उसमें बुलाया था, तो कम्युनिटी मैनेजर्स का। तो वो फर्स्ट टाइम था जून में वो फर्स्ट टाइम था कि जब मैं इतने सारे कम्युनिटी मैनेजर से मिला हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको कॉल भी किया था
कि ऐसा कुछ स्टार्ट करने का है। मैं स्किलेंजा में उस टाइम पे था, ऑफिस में था, ऑफिस से ही कॉल किया मुझे, याद भी वॉक कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो वहीं से चालू हुआ, वहां से कम्युनिटी फोक स्टार्ट हुआ, और आई गेस फिर क्लैरिटी, फिर आई स्टार्टेड, मतलब मैं जो असली में पढ़ाई करी है वो शायद वो 2016 से करनी चालू करी रियली लाइफ में, खुद के लिए पढ़ना। मतलब तब मैंने पढ़ता था, फिर मैंने रिसर्च करा, पढ़ा। एक है जब आपको अपना वो दिख जाता है कि मुझे किस बात में जाना है, तो तब बिल्कुल ज्यादा एफर्ट करते हैं लाइफ में हम लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली वही गेम था। मतलब मैं आपको इसको ऐसे इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कैसा एकेडमिक था मेरा, नो स्कॉलर, नो रीडिंग, नो सच काइंड ऑफ थिंग। एंड देन देयर वर टाइम्स कि जब मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा हूँ, देयर वाज अ टाइम कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं और मैं दीदी के घर पे हूँ, माय फादर आस्क्ड माय सिस्टर इन द मॉर्निंग कि वो क्या कर रहा था रात को, पढ़ता है रात को, क्या सीन है, पागल तो नहीं हो गया है? मतलब मैं नहीं पढ़ता हूँ ना, राइट? तो वो कैसे कर रहा है ये चीज? तो इस तरीके का कुछ मेरा मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी उस तरीके की थी, बट मेरे को पढ़ने मजा आने लगा कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। आई फिगर आउट कि यार ये तो कम्युनिटी मैनेजमेंट इतना पुराना डोमेन है और मतलब कोई ने इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, क्या सीन है। तो बस वहां से पिकअप करा और फिर तो जर्नी थी। छोड़ा 17 में स्किलेंजा छोड़ा, ये बोल करके शुभेंदु और मायना को, जो उनके को फाउंडर थे, कि मैं मतलब व्हाट आई एम डूइंग फॉर स्किलेंजा, आई वांट टू डू इट फॉर मेनी कंपनीज। मैंने यही बोला, मतलब मैं आई वांट टू हेल्प मोर कम्युनिटी कंपनीज बिल्ड कम्युनिटीज, आई वांट टू ग्रो कम्युनिटी मैनेजर्स ट्राइब, यही बोल के छोड़ा था मैंने। और 17 एंड में छोड़ा था, और फिर थोड़ा टाइम पास करा। राइट, क्या 1.5 years। नहीं, 1.5 ईयर का हुआ, एक साल 11 महीने हुए। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो मैं एक 11 एक महीना, सॉरी, एक साल 1 महीना। मैंने जुलाई में ज्वाइन करा, ठीक है, जून में ज्वाइन करा, जुलाई में मेरा एक नी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने महीने भर में ज्वाइन करते ही मेरा जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में वापस आया, ठीक है। तो एक्चुअल में सितंबर से जर्नी चालू हुई, और मैंने जुलाई 2017 में फिर से छोड़ दिया। तो एक्चुअल में 11 महीने ही था, तो जो मैंने वहां पे रहा हूं मैं। लेकिन जो छोड़ते ही थोड़ा बहुत जो सेविंग क्या होती है जो भी था, वो उससे चिल करा पहले 1-2 महीना काफी। न्यू ईयर घूमने 15-17 दिन के लिए वहां चले गए, क्या बोलते हैं, सिक्किम, और लौट के आए तो ब्रोक। 2018 ब्रोक स्टार्ट थी, व्हाट अ स्टार्ट। तो काफी क्रेजी स्टार्ट, और जॉब करने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। यही चीज फिगर आउट कर रहा था, घर से ही काम करना, ये वो चीजें सब कुछ ऐसे ही। तो आप ये सोचो, मैं आपको बता दूं कि पहला प्रॉपर टास्क मेरे को जो मिला है ना, प्रॉपर क्लाइंट जो मिला है, वो जुलाई 2017 या जुलाई के पास अगस्त आता है, पता नहीं क्या, अगस्त समवेयर, जुलाई या अगस्त के अराउंड मैंने स्किलेंजा छोड़ा है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट जो भी है डेट। और मेरे को जो मिला है क्लाइंट तब से लेकर के जून में पहला क्लाइंट मिला है, नेक्स्ट ईयर। तो आप सोचो, हाँ, तो आप सोचो, फिर से मैंने वही पैटर्न फॉलो किया कि जॉब के बाद में फिर से फट गई, जीरो कैश, नो मनी टू इवन पे फॉर रेंट वाला सीन, ठीक है। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरा स्प्लिट वाइज वो सब थोड़ा बहुत बचा रहा था मेरे को, कि वो इस पे पहले से थोड़ा डेप्थ था, तो मैं चलो बच जा रहा था। और मेरे जो साथ में रहते थे कलीग्स, उन्होंने 2-3 महीने का रेंट दिया पेड, जिनको मैंने बाद में दिया है। बट वो वाला सीन हो गया था कि यू वॉकिंग मोर टू सेव मनी फॉर समथिंग। तो मतलब मजे आया ना, अपने लिए तो कर रहे थे, मतलब फॉर हु एल्स, ये तो खुद के लिए था, खुद को था मन की नहीं जा रहा मैं जॉब में वापस, और जो प्लान किया वही करूंगा। तो जून में आई क्रैक दिस। एंड अभिषेक, द गुड पार्ट इज, अगर जो आप मैं बोलूंगा कम्युनिटी का पावर ऑफ पीपल, तो वहां से चालू हुआ है पावर ऑफ पीपल का गेम। मतलब ये जो इनपुट दिए ना मैंने, टू प्रोवाइड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, आई गेस, तो ये वहां से चालू हुआ है कि आई luckily I have never reached out to any opportunity as of now, जिसमें 4 स्टार्टअप्स हैं और जॉब्स हैं, मतलब जॉब और ये जो जितना भी जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको सारी गिनाता हूँ। आई हैव नेवर रीच्ड आउट टू एनीवन और अप्लाइड टू एनीथिंग डायरेक्टली। आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड। किसी ने मुझे कनेक्ट करा कि हे, पारस इज देयर। वो विक्रम आहूजा, मेरी जो फर्स्ट क्लाइंट है, वो उनकी कंपनी थी, तो वो ट्रैवलर, विमेन ट्रैवलर के अराउंड कम्युनिटी है। नहीं, विक्रम आहूजा यहाँ पे ये इंदिरा नगर में है, वो यही के काइंड ऑफ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर आई गेस। और बियॉन्ड ट्रैवल करके उनकी कंपनी थी, जो फॉरेन ट्रैवल जगह, बट स्पेसिफिकली फॉर विमेन, ठीक है। तो उस वहां से कम्युनिटी बिल्डिंग, वहां से वो चीज ढंग से प्रॉपर क्लाइंट, उससे पहले वाले क्लाइंट जो थे क्लाइंट नहीं थे वो, मतलब वो सब ऐसी था, अरेंजमेंट था कुछ भी। आई वाज वर्किंग एज अ ब्रोकर, आई वाज वर्किंग गेटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर समथिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनाऊं मैं,
और कुछ भी बनाओ, जो भी बनाए फॉर सर्वाइवल सब कुछ किया है मैंने, मतलब सब कुछ किया है। और आप सोचो कि आई कैन गेट आई हैव जॉब ऑप्शन रेडी है, जॉब ऑप्शन, क्योंकि कम्युनिटी मैनेजमेंट में जॉब्स थी उस टाइम पे, बट फन ही नहीं था जॉब का, और मेरे को था कि ये तो करके ही देखना कैसे करना है। तो वो इंडिविजुअल क्लाइंट बनना, और जब आप थोड़े यंग भी दिखते हो और आप फटी जीन्स और चप्पल में घूमते हो, आपको कोई कंसल्टेंट समझता नहीं है, लोग बोलते हैं, और उस टाइम पे उनको क्लैरिटी भी नहीं है, वो ये पूछते हैं कि इवेंट मैनेजर और कम्युनिटी मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे वाले टाइम पे यू ट्राइंग टू क्रैक क्लाइंट, और अपन इंडियन है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने मतलब अपने को सिखाया कि कुछ नहीं मिल रहा तो कॉपी कर लो, ठीक है। तो अब ये कॉपी करने को भी नहीं था किसी से, कोई मेंटर भी नहीं है कि कोई बता दे मेरे को कम्युनिटी मैनेजमेंट स्पेसिफिकली कि मतलब कंसल्टिंग कैसे करते हैं। आशा थी उस टाइम पे जिनसे मैं बात करता था काफी, बट वो भी एग्जैक्टली इस तरीके से कंसल्टिंग वाले, एक कंसल्टिंग कर रही थी कि वो लॉन्ग टाइम कंसल्टिंग कर रही थी, मतलब ऐसे मल्टीपल वाले उसमें नहीं कर रही, तो काफी मुश्किल था और खुद से फिगर आउट करना। 1-2 महीने का काम है, कुछ कर लो। हाँ, तो उस तरीके की चीज को मैंने ब्रेक करा वहां से। तो बियॉन्ड ट्रेवल, पेट सर्च, स्केपिक, देन फेसबुक वाला ये, देन माइक्रोसॉफ्ट वाला, देन दिस लाइक माइंड्स व्हिच आई एम डूइंग राइट नाउ, देन इवन अ फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स। एक में भी मैंने मतलब मैंने नहीं अप्रोच करा है, इट्स ऑलवेज पीपल, ऑलवेज समवन जिसके साथ मेरा अच्छा कनेक्ट बैठा, दे फाउंडेड अ वैल्यू इन मी एंड देन दे प्रपोज मी समवेयर ऑलवेज। और आई तो गेस फ्रॉम मेरा जून। जो कम्युनिटी को लेके जो डेफिनेशन है ना, कि कम्युनिटी में अगर 50 लोगों से जुड़े हो, तो 50 लोग कौन कहाँ बैठ के आपके बारे में बात कर रहा है, यू नेवर नो। बिल्कुल। तो एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि एक कोवर्किंग में मेरा एक एक्सीलेटर का दोस्त वहां पे बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और मैं ना कोवर्किंग वाले को जानता हूँ ना एक्सीलेटर को जानता हूँ। तो बाद में जब एक्सीलेटर वाला मेरा दोस्त बना, तो उसने मुझे बताया कि अभिषेक, अच्छा तुम्हारे बारे में बात हुई थी 2 साल पहले, यहाँ पे बैठे थे तो ये बात हो रही थी। तो उसने नाइस। मुझे बोला, नहीं अच्छा अभिषेक बहुत सही है इस चीज के लिए। तो ये हाँ, चीज कम्युनिटी में ही पॉसिबल है, आई थिंक। कम्युनिटी इज सॉर्ट ऑफ कि नेटवर्किंग वाला जो पार्ट है ना, कि आप बिकॉज यू ग्रो इन कम्युनिटी जस्ट बिकॉज कि यू आर पीपल्स पर्सन। लोग लोग पसंद है ज्यादा, और इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डील विद पीपल। तो अगर राइट। आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो यू विल श्योरली एक्सेल इन कम्युनिटी बिल्डिंग, और इस तरह के किसी भी बिजनेस में या जॉब में। तो अभी पारस थोड़ा सा मूव करते हैं, कम्युनिटी से शिफ्ट करते हैं कि ये भी मैं देखता हूँ कि बहुत वीकेंड्स पे ट्रैवलिंग होती है तुम्हारी। उसके बारे में क्या तुम्हारा जिंदगी में फंडे हैं कि हर वीकेंड या तो बेंगलोर के किसी आसपास के हिल स्टेशन पे, या फिर कहीं गोवा, या फिर अब कहीं, उसका क्या? अभी थोड़ी अभी थोड़ी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है क्या सीन है, बट हाँ। लाइक आई वाज सेइंग कि मतलब गुड इनफ ट्रैवल मारा है मैंने, गुड इनफ मेरे को आसपास की जगह और इंडिया के भी कई सारी जगह, मतलब जैसे एक टाइम था, मैं कुछ लिस्ट बनाई है कि जो स्किलेंजा वाला टाइम था, और उसके बाद में थोड़ा सा और टाइम, तो जैसे 2016 के जब से स्किलेंजा ज्वाइन किया तब से 2018 के फेब तक या 2018 की स्टार्टिंग तक ऐसा मान लेते हैं, 16 से 17, मतलब 1.5 साल हो गया ना। उस 1.5 साल में मैंने कुछ 20-21 जगह आई रोम्ड अराउंड, मतलब मैं घूम ही रहा हूँ। और फिर उसके बाद में मतलब आई कंपनी और मिक्स दोनों, नहीं, कंपनी कभी अपनी उसमें पार्ट हो गया। कंपनी के काम से छोड़ के जो अपने एडवेंचर के लिए, अपने सुकून के लिए। तो आप मैं वही बता रहा हूँ कि कंपनी का काम, जैसे अगर कोई और जाएगा तो कंपनी का काम, क्योंकि उस जगह पे लोग होते हैं, तो आपकी आपकी प्रोफेशनल ट्रिप पर्सनल हो जाती है, राइट। यही मेरा फंडा था। तो मैं कहीं पे भी गया हूँ वहां पे, मैं हांगकांग सिंगापुर भी गया, तो वहां पे भी मैं मेरे मतलब आई वाज सपोज टू स्टे इन अ होटल और आई स्टे इन अ हॉस्टल और व्हाटएवर, नो, बट वहां पे भी लोग मिल गए और मैंने लोकल की तरह पूरी जगह घूमी, मतलब वहीं पे खाना भी बना रहा हूँ, और मतलब कुक करने का ऑप्शन मिल रहा है, बातें करने का ऑप्शन मिल रहा है, उनके फ्रेंड्स को घूमने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप सोचो यही सेम हाल इंडिया में। तो ये जो घूमने का जो फंडा है ना, आई गेस इसने जो ब्रेक दिया है, इसने जो टाइम दिया है ना, टू सेल्फ रियलाइज एंड टू सेल्फ अंडरस्टैंड माई सेल्फ, इट हैज चेंज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब लस्ट है वो मेरे को उसके लिए, मतलब आई ओके। आई फील कि मैं इतना देखो, या तो स्पोर्ट्स होते हैं, मैं मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पोर्ट, मेरे थोड़ा मतलब मेरे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई मेरे नीज वीज का, तो इसलिए हाँ। फुटबॉल।
बट फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, मैं ये सब चीजों को खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता था बट इतना नहीं, बट हाँ फुटबॉल और बैडमिंटन तो ऑन द टॉप है। तो मैं इसको स्पोर्ट्स इसलिए मैं बोला आपको क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, 1 घंटे में यू लिव ऑल द इमोशंस, राइट, हैप्पीनेस, सॉरो, एक्साइटमेंट, बिटरनेस, लाइक यू नो एवरी फकिंग थिंग, सारी फीलिंग निकल जाती थी एक गोल मार के और गोल खाने तक की, जो वो है ना उसमें सब कुछ है उसके अंदर। और सिमिलरली वो चीज ट्रैवल ने देनी चालू कर दी, क्योंकि मेरे फिजिकल मतलब पैर वैर में लग गई, तो इस चक्कर में मैं नहीं खेल पा रहा, तो ट्रैवल ने सेम फ्लेवर दे दिया लाइफ में। एक सारा चीज हो जाती है, ये अनएक्सप्लोर्ड चीज फिगर आउट करना। और फिर मैंने ट्रिप्स भी ऐसी मारी है कि बिना बुक करे किसी भी जगह को, आई यूज्ड टू गो देयर विद अ टेंट, बाइक पे लगा करके, और बात करके किसी से भी लोकल से कहीं पे भी किसी के फार्म पे बात कर ली, उनसे बात कर ली, इनसे बात कर ली, ऐसी सिर्फ बातें कर रहा हूँ और उनके वहां पे जाकर के अपना टेंट पिच कर लिया उनसे बात करके। तो ऐसी वाली ट्रिप्स करी है। ये तो किसी को वहां पे ढूंढ लिया, वहां से कुछ फिगर आउट कर लिया, तो जान करके मैं टफ बना के लेके जाता था कि टफ होगा तो मेरे को उतना मजा आएगा। और वो फन ने मेरे को शायद और क्रेजी कर दिया ट्रैवल के बारे में। तो मैं अभी भी मतलब ऐसे सोचता हूँ मेरे को कि मैं थोड़ा टाइम के लिए वेगाबॉन्ड बनना चाहता हूँ, मतलब कि जिससे कि मैं शायद और मल्टीपल ट्राइब्स को चेक कर पाऊं, क्योंकि मेरे को ना काफी फैसिनेटिंग लगते हैं लोग यार, मतलब ओवरऑल पीपल सब तरीके के होते हैं, बड़े ही मतलब टू टाइप के ये भी होते वाली हैं और बड़े बड़े टाइप के भी होते हैं। हाँ, बट वो फ्लेवर है। और मैं तो मतलब मेरे को तो पसंद है वैसे भी पॉजिटिव साइड पकड़ना चीजों की, मतलब कुछ भी हो, घटिया से घटिया आदमी हो, पॉजिटिव देख ही लेता हूँ कुछ ना कुछ उसमें, तो मेरे को उसमें मजा आता है। तो ट्रैवल ने मेरे को वो बहुत दिया है, काफी एक्सपीरियंस, काफी काफी क्लैरिटी और काफी सेल्फ टाइम टू थिंक एंड रियलाइज। तो इसलिए मेरे को जब भी मौका पड़ा मैंने ट्राई करा भगने का, खुद से किसी के साथ में, कोई भी ग्रुप, कुछ भी, अगर किसी को नहीं आना तो अकेले कैसे भी चला जा सकता हूँ मैं, मतलब और कहीं भी जा सकता हूँ मेरे को। ट्रैवलिंग वाला टाइम मेरे साथ जो हुआ था वो बता दूं मैं। हम्म। वो हुआ था 2014 और 15 के बीच में, 2 साल। 2 साल ऐसा था कि मैं बैग लेके दिल्ली से निकला ऑफिस के काम से, पूरा ऑफिस के काम से 2 साल बैग लेके निकला हूँ मैं। कहा लुधियाना, लुधियाना से कहा कोलकाता, कोलकाता से कहा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से कहा सिंगापुर, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से कहा फिर मुंबई, मुंबई से कहा फिर बैंगलोर, और बैंगलोर से कहा हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से फिर दिल्ली। तो ऐसा मतलब कि 2 साल ऐसा मतलब कटा मेरा कि वो लगता था यार मैं मतलब जिंदगी में बस ये है कि बैग पैक है, मतलब मैं दिल्ली पहुंचता था 2 दिन बाद मेरा मैं कहीं और निकला हूँ। निकल रहा है। तो उस चक्कर में मैं इतना घूम लिया, इतना घूम लिया, बीचेस, माउंटेन, सब कुछ। तो हाँ, गोवा जाना था, पहली बार जब गोवा गया था मैं, तो गोवा के पास एक जगह है बिलगाम, जानते होगे। जानता हूँ मैं। बेलगाम से मतलब 4-5 घंटे का रास्ता है गोवा। तो ऑफिस के काम से बेलगाम गया था, और जब मैंने वहां पे लोगों से पता किया तो बोले बस यहाँ से तो 2-3 घंटे का रास्ता है गोवा। अब ऑफिस के काम से गए हो, ऑफिस में सबको पता है कि यार तुम ऑफिस के काम से गए हो, तुम गोवा में हो, बट गोवा के पिक्चर्स नहीं डाल सकते। काफी मेरे साथ भी ऐसी ही हुआ है कई जगहों पे बड़ा। वो 2 साल इतना मैं ट्रेवल किया ऑल ओवर इंडिया कि उसके बाद अब वो लगा यार अब तो थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। फिर मैंने वो लास्ट जॉब जॉब छोड़ दी, उसके बाद मैंने कहा नहीं अब नहीं होगा मेरे से, और उसके बाद आई ओन वेंचर्स और सब कुछ अपना। सो तो पारस अपने गेम्स के क्या मतलब, गेम्स क्या किक देते हैं लाइफ में, क्यों जरूरी है मतलब। तो गेम ना तो गेम, स्पोर्ट और गेम मैं हाँ दोनों फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मतलब हर तरीके से और फॉलो करता हूँ कि स्पोर्ट जो है फेयरली गुड आई यूज टू प्ले, मतलब जैसे मैंने बोल रहा हूँ इतना बेकार नहीं खेलता था, फेयरली गुड वट एवर आई एम प्लेइंग। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास अकॉलेट्स हैं उसको प्रूव करने के लिए, मतलब कॉलेज का टीम कैप्टन सिंचर में जाकर के कुछ तो वहाँ पे कमरे में ठीक है। मैं हाँ हाँ, मेरे घर का नाम ओल्ड ट्रैफर्ड है, मतलब यूनाइटेड का जो स्टेडियम है उसका नाम ओल्ड ट्रैफर्ड है, मेरे घर का नाम ओल्ड ट्रैफर्ड है, मेरे को लाल से प्यार है, मतलब मेरे पास में बाइक लाल है, मेरा बीम बैग लाल है, मेरे घर का मेरे फोन लाल है दोनों, तो हेडफोन भी लाल है यार, तो मतलब आई लव रेड। तो शायद वो यूनाइटेड फॉलो के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स मेरे को ऐसा लगता है कि ना स्पोर्ट्स इज लाइक अ रिलीजन टू मी। वो वाला रिलीजन नहीं है मेरा, रिलीजन नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स के थ्रू अगर रिलीजन बनाए जाते ना और लोग इस हिसाब से तो शायद बहुत क्लैरिटी, तो बहुत ओपन माइंडेड लोग होते। तो स्पोर्ट ने मेरे को वो दिया है, ब्रदरहुड समझाई है,
फ्रेंडशिप समझिए, टीम लीडरशिप समझाइए कि क्या मजा आता है फटे में भी लोग कैसे निकालना है एज अ गुड लीडर लोगों को। तो इसलिए तो मुझे स्पोर्ट पसंद है, ये एड्रेनलिन रश होता है। और ऐसा पूरे दिन भर में कोई टाइम नहीं होता था, तो एक्सेंचर में टाइम, तो जब मैंने लगी तो उससे पहले आई यूज्ड टू प्ले 5 days फुटबॉल, 2 days बैडमिंटन, 1 day स्विमिंग, ऑल 7 days आई यूज्ड टू प्ले। मतलब सुपर डुपर फिट, उसमें मैं जिम भी मार रहा हूँ और इतने लेवल पे खेलता था उस टाइम पे मैं। तो फिर स्पोर्ट कम हुआ, बट मैंने फॉलो करता हूँ, तो मैं आई फॉलो वन गेम, मतलब फुटबॉल, जिसमें यूनाइटेड, मैं एक ही टीम फॉलो करता हूँ। कुछ टाइम हो गया, कुछ साल हो गए अब तो। और आई फेयरली फॉलो इट, मतलब मैं सारे मैच देखता हूँ, अच्छे से फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बोला, मैं ट्रू हूँ मेरे फॉलो करने में। फिर मैं फीफा खेलता हूँ, मैं पीएस पे गेम्स खेलता हूँ, गॉड ऑफ वॉर टाइप के जो रियल पर्सन गेम्स होते हैं, ये सारी चीजें खेलता हूँ। और गेम्स में और क्या था, पोकर मुझे पसंद है, मैं पोकर खेल लेता हूँ अभी। और और क्या, हाँ, मतलब तो यही वो वाली चीज है, स्पोर्ट्स और गेम दोनों चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। और मेरा पर्पस यही है कि इवन मैं बोलता हूँ कि गिव योर किड्स फ्रीडम टू प्ले, आई गेस, फ्रॉम rather than academic sports has more learnings than academics in a student's life, because of the what do you call सिखाता है, ब्रदरहुड सिखाता है, it? स्पोर्ट्समैनशिप। डेफिनेटली। और अपना जो कोर्सेज है वो कितने पुराने हैं, बट ये सारी चीजें सब नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, तो उनसे कुछ नहीं सीखने वाले आप, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे को जब सीखना था, मैंने खुद से कहाँ से सीखा है एकदम फ्रेश चीजें। तो अगर मैं उन कोर्स को पढ़ता तो बहुत अच्छी बात है, मैं पता नहीं क्या सीखता। तो मेरे इसलिए तो साथ ये है कोर्स का। हुए कि मैं हाँ। जब एमबीए कर रहा था उदयपुर से, तो मेरे कॉलेज में एक हमारा सीनियर था, वो चेस में सबको हराता था, पूरे हम्म, मतलब कॉलेज के डायरेक्टर्स को लेके, कॉलेज सीनियर्स को लेके, किसी की टीचर्स को लेके, सबको। मत तो बोलना उसने, आपने उसको फेल दिया। हाँ, उसने मुझे बोला कि अभिषेक भाई आप खेलो। मैंने कहा यार मैं हाँ, उतना तो अच्छा हूँ नहीं खेलने में, बट तुम इतना, हम्म, तुमसे हारना भी चलो अच्छी बात होगी मेरे लिए। मैंने कहा चलो हम्म, खेलते हैं। अब हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के खेल रहे हैं चेस, और वहां पे सब कोई आ गया भाई, क्योंकि हम्म, उसके साथ खेल रहा था जो बेस्ट है स्कूल हाँ, कॉलेज। सही बात और मैंने वहां पे उसको पेल दिया। अब वो बेचारा क्या हुआ, जिन उसके बाद वो मतलब टेंशन में आ गया कि इसने मुझे कैसे हरा दिया सबके सामने। सही अब वो आके बात है। पूछता था अभिषेक खेलोगे, मैंने कहा नहीं खेलूंगा, मेरा हाँ, स्ट्राइक 0 है हमेशा, 100% तुम्हारे साथ रहा है वो। हाँ। तो वो उसके बाद बेचारा जब भी मेरे से मिलता था बोलता था चलो एक बार खेल लो, एक बार खेल लो। मैं खेलता ही नहीं था उसके साथ। सही कॉलेज था। में रहा है। क्रिकेट तो मैं बहुत ही बचपन से, इंडिया में अगर लोग क्रिकेट ना खेले तो फिर इंडियन नहीं है वो, व्हाट आई फील। हाँ, अरे मैं भी बहुत खेला हूँ, बहुत खेला हाँ हूँ, मतलब वो गली का कॉलोनी वाला क्रिकेट तो बहुत खेला हूँ, मतलब हाँ। एक्सट्रीम पैसे वैसे लगा के खेला हूँ लेवल तक। तो मजा आता था मेरे को वो खेलने में, तो नो डाउट और ये चीज स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं बात करूँ तो अगर इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर एक हम्म, बात किया जाती है, अपने आप को काम कैसे रखा जाए, मतलब कि आज की डेट में हम लोग सबको एक रैट रेस में कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, कुछ पाने की हम्म, चाहत में, कुछ आगे बढ़ने की चाहत में बोले तो हम लोग हम्म। मतलब अपने आप को शांत कैसे रखें, मतलब कि यार क्या यही लाइफ है, क्या हमें भागना ही है जिंदगी भर, उसके लिए क्या करते हो, मतलब कि या कुछ तो ये कैसे हो गए या मैं वीकेंड पे। मस्त 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 ही क्वेश्चन है यार ये, मतलब कि ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से पूछना कि क्या हमें भागने है जिंदगी भर। तो आई गेस भागने का पता नहीं, ढूंढने का जरूर पता है मुझे कि मैं जिंदगी भर ढूंढता तो रहूंगा, मेरे को मजा आता है, मतलब कोई भी चीज को कोई भी प्रॉब्लम को पिक करके करने में, ये तो मैं जरूर करूंगा। बट हम्म, जो जो आपका पॉइंट है ना कि कामनेस के ऊपर अगर आप बात करें, तो शायद मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो मैं थोड़ा, मेरा लाइफस्टाइल भी अलग तरीके है। आई लिव विद बॉयज, ठीक है। मेरा ये जो घर है, इसमें इसमें पिछले 3 साल में यूनिक 40 से ऊपर लोग आके रह चुके हैं, एक हफ्ते से ज्यादा। हाँ। तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि क्या घर है इसमें, पार्टी तो हो रही है, अगर 150 जाना है तो पारस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके फोन कर लो या मैसेज कर लो, बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हो। अपनी लॉजिंग ओपन है, तो कभी भी आ जाओ, ठीक है। और मतलब F&B ऑन द हाउस है, तो कोई लोड नहीं है। तो आई गेस वो जो लाइफस्टाइल यहाँ पे मेरे पास में है, वो पहले तो वही मेरे को बहुत बैलेंस कर रखता है। आई लिव विद यंग बॉयज, राइट, मेरे कॉलेज के या फिर कुछ भी, और उनके दोस्त, तो वो यंग होते हैं, एनर्जी रहती है, ठीक है। तो एक तो वो रीजन है, मैं बहुत पंप अप रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा दूसरा मैं ये जो, मतलब मैंने कैसे बैलेंस आउट करा है मेरे मेरे स्ट्रगल को, इज टू शेयर इट, लोग को शेयर करने। तो मैंने जो विजडम बाबा पेज है, वो मैंने मेरा स्ट्रगल शेयर करने के लिए बनाया था। वो मेरे थॉट्स थे कि
वो वाले जैसे जो थॉट होते हैं ना कि मतलब मैंने कई ऐसे ऐसे चीजें लिखे हुए हैं उसके अंदर जो मेरे लिटरली थॉट से मैं चल रहा हूँ और मैं चलते चलते पे लिखा है कि आज मतलब नॉट पिकिंग अप माय फोन कॉल, राइट? तो आई विल मेक अ डे व्हेन यू हैव टू फाइंड अ स्लॉट टू टॉक टू मी, मतलब ऐसे वाली चीजें जो मैंने खुद से लिखी हुई है मेरे खुद के लिए कि मेरी खुद की फीलिंग। ये चीज ना, एक्चुअली मैं बता दूं, बैंगलोर का ही बंदा है। हाँ। तब वो बहुत थोड़ा मतलब जब मैं नया नया स्टार्ट कर रहा था कम्युनिटी में या फिर कुछ इन सब चीज़ों में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैंने उसको एक फ़ोन किया कि यार भाई ये काम कर दोगे थोड़ा मेरे लिए? तो उसने बोला हाँ कर देंगे। बट उसने बाद में ना वो काम किया ना मेरे फ़ोन उठाया। मैंने कहा ठीक है। 2-3 साल बाद ऐसा आया, उसका फ़ोन आया कि अभिषेक भाई मैं दिल्ली में आ रहा हूँ, मुझे ये चीज़ करना है, कैन यू डू इट फॉर मी? मैंने उस बंदे का लेके सब कुछ, फ्रॉम स्टेइंग टू उसका सारा करना, इवेंट्स कराना, उसका सब कुछ, खाना पीना घूमना, सब कुछ किया मैंने। और तब मैंने लास्ट को एक याद दिलाई कि भाई याद है 2 साल पहले जब मैंने फोन किया था। दैट्स हाउ तो यू डील विद इट। तो ये ना मैंने कहा बात। कि तुम्हें कभी भी किसी को लाइफ में, मैं तो एक मानता हूँ ये चीज कि कभी भी आप अगर बड़े हो और हेल्प कर सकते हो तो जरूर आप कोशिश करो हेल्प करने की। क्योंकि मैं बिल्कुल। कर्मा पे बिलीव करता हूँ और कर्मा पे ये मानता हूँ कि ये 10x होके आता है। आज मैं जो कुछ या तू भी है, ट्रू। पागल भी, अगर कोई बात तो यार हम लोग मतलब अ, हम लोगों ने पहले दिया है लेने से पहले। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। और आज की डेट में वो 10x 20x होके जो आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो कर्मा है हमारा। मैं तो कंप्लीटली एग्री करता हूँ। मैं मतलब वो पता नहीं कौन सा म्यूचुअल फंड है बट इसका रिटर्न बहुत हाई है मेरा तो, मतलब हाँ, मुझे पता है। ठीक है, इसका इतना हैवीएस्ट हाईएस्ट रिटर्न है कि आई समटाइम्स फील कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता यार, ये क्यों मिल रहा है उतना मेरे से को। ज्यादा return देता है। हाँ मतलब मैं नहीं डिजर्व करता, मेरे को कभी कभी लगता है ये तो डिजर्व नहीं करता, मैंने नहीं करा था, इस थॉट से तो करा नहीं था, ये ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पास में, कई बार मुझे ऐसा लगा है। तो गोइंग बैक टू द थिंग कि मैं क्या चीजें करता हूँ टू स्टे काम, तो मैं काफी मतलब स्विच ऑफ कर देता हूँ खुद को। हम्म, जैसे जो वीकेंड वगैरह इस टाइप की चीजें आती है तो मैं थोड़ा स्विच ऑफ मारता हूँ। और मैं पर्सनल टास्क, तो मैं साइड हसल की बात करूंगा, ये मैं सबको बोलना चाहूंगा कि साइड, इसलिए मैंने बोला एक्सप्लोरर जो है ना तुम्हारे अंदर मरना नहीं चाहिए, तो साइड हसल करती रहनी चाहिए। तो साइड हसल में आप मतलब आप सोच ही सकते हैं, मैं भसड़ी करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीजें दिमाग में आती रहती हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ गया तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उल्टे सीधे मेरे को इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्योंकि क्यूरियस नेचर है तो शायद मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिक पसंद है, मेरे को ये पड़ा हुआ है। हम्म, तो ऐसे कुछ भी चीजें, यूकेलेले पीछे लटका होगा, मैं कुछ भी बजाता हूँ, मेरे को इतना नहीं आता बट मेरे को पसंद है बजाते रहना देख करके, तो मैं वो कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत बुक उठा ली, वो पढ़ ली, लोगों से बात कर ली, शांत बैठ गए बिल्कुल। और यही सब तरीके मेरे खुद को करने के लिए, थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा टास्क कर लेता हूँ। और सारी चीजें करनी और पसंद है, आप समझ रहे हो, सब कुछ ही करना है मेरे को वाली हम्म। प्रॉब्लम है, तो मेरे को ऐसा यानी लगता है कि ये वाला चीज जो कितने लोग बोलते हैं कि नहीं यार एक चीज को फाइंड करो, पैशन को, उसको तुम्हारे परस्यू ऊपर है करो। वो, पता नहीं। तुम्हारे ऊपर है वो। इफ यू कैन स्विच योर ब्रेन एंड डू थिंग्स, आई कैन स्विच माय ब्रेन टू डू। मैंने अभी एक दिन वीडियो डाला था, मेरे तीन तीन कम्युनिटी मीटअप्स थे, एक 6:30 बजे, एक 7 बजे, एक 7:30 बजे, तीनों होस्ट करे हैं मैंने, और सामने तीनों लगे हुए हैं। और वो एक डिफिकल्ट लगेगा किसी को, मेरे को भी लगता है कि मेरा अगर टास्क नहीं होता, अगर मुझे पसंद नहीं होता ना, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट है। अगर मेरी फील्ड नहीं होती, मेरी चीज नहीं होती, मेरे को ऐसा लगता है यार 3-3 टास्क एक साथ दे दिए, पर मेरे को लगा भाई 6 और दे दे मेरे को, मैं उसके बाद में 6 और कर दूंगा, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो, तो मेरे को, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता चीजों से, आई फील कि आज उठाऊं, आज की चीजें करता हूँ, पूरा चिल करना है मेरे को, सारी चीजें करनी है और फिर फिनिश आउट करना है। आप सोच लो, मैंने इस मोमेंट में, मतलब मैं आपको मल्टीपल चीजों के हिसाब से बता रहा हूँ, दो तीन डिफरेंट चीजें जो जो प्रोफेशनली साइड से जो काम है वो कर रहा हूँ, कम्युनिटी फोक्स भी है वो भी देखता हूँ, ठीक है, विजडम हब है वो भी देखता हूँ, विजडम हब पे कॉन्वर्जेशन करता हूँ पर्सनली, एक दिन में कम से कम 20 लोगों से उस पर बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं 50 लोगों से बात करता हूँ एक दिन में ओवरऑल, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो 50 कॉन्वर्जेशन हैं, ऑफिस कॉल्स हैं, सब कुछ है उसमें मैंने मेरा फास्टिंग भी फॉलो कर लिया, 2 महीने हो गए मेरे को फोक करते हो, मेरे को ट्राई मारना था, देखना था इंटरमिटेंट कैसे काम करती है, 16 घंटे वाला वो भी कर लिया, 2 महीने हो गए आज, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट सीख लिए, 2-3 तरीके के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैं कुक भी कर लेता हूँ, मैंने मेरे थोड़ा गार्डनिंग वार्डनिंग वो वाला सीन वो भी सेट कर लिया, मैंने मेरी जिप्स बनाई है, जिप्स लॉन्च करी है, ठीक है, मैंने मेरे नए वीडियो सीरीज चालू कर दी, और पॉडकास्ट मार रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो, सब जगह पे, और सब जगह पे सब कुछ करने का, बियर ब्रू, मतलब जिन की नई तरीके बनाने चालू कर दिया, कॉफी ब्रू करनी चालू कर दी, तो मुझे सीखना है, मेरे ऊपर है, मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो मैं करता हूँ। गेम्स फिनिश कर दिए मैंने कितने सारे,
पीएस पे। तो ये मेरा फंडा है, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से स्विच कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज मल्टीपल थिंग्स, तो मैं कर रहा हूँ और मेरा क्यूरियस चीज है, तो मैं वो करता हूँ, बट एक बैलेंस रखता हूँ मैं। मतलब कि लाइफ में जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार ये चीज मेरे साथ हो सकती है, तो हाँ, वो मैंने 2-3 चीज मतलब लाइफ में मैंने नोटिस किया है। एक तो कि आप पावर ऑफ आस्किंग पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, पहला। बैंकर। हाँ, दूसरा कि आप हमेशा अगर देने वाली नियत होती है ना, तो वो आता है वापस। तो हाँ, मतलब मैं आईआईएम में कभी गया नहीं यार, मतलब हाँ, इस साल एक आईआईएम में मैं मेंटर हूँ। ऐसे ऐसे चीज हुए ना पिछले 2-3 साल में। मतलब एक आईएमटी गाजियाबाद है, वहाँ पे इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब उसमें एडमिशन लायक तो कैट के रिजल्ट अपने नहीं है भाई। उसमें भी जाके मैं 4 बार या 5 बार एज ए स्पीकर गया था। आईआईटी दिल्ली गया था, आईआईटी आईएम बोधगया गया था, आईएम काशीपुर में मेंटर हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है इन बीच में कि जो लगता था यार इनसे कैसे बात हो सकती है मेरी। ट्रू, आई कैन फील तो दैट। जब नेक्स्ट वीक ब्रांड स्टार्ट किया लास्ट ईयर, और इस साल हम लोगों ने इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किया था उस पर, तो सबसे पहले मैं उन्हें बोला कि किसी ऐसे बंदे को बुलाते हैं जो वेल पॉपुलर हो थोड़ा। तो तब ये आया था, मिर्जापुर आया था। मिर्जापुर के बाद ताल्लुक आया था। तो अभिषेक बैनर्जी जो है उसमें जो हथौड़ा त्यागी बना हुआ है। तो मैंने कैसे ही, अब वही है कि नंबर तो मिल जाते हैं, नंबर तो वो जो है ना पावर ऑफ आस्किंग वाला, वो नंबर जुगाड़ा मैंने, जुगाड़ के मैंने उनको मैसेज किया कि हे अभिषेक दिस साइड फ्रॉम नेक्स्ट ब्रांड मीडिया, कैन वी डू ए इंटरव्यू ऑन योर लाइफ जर्नी और योर कंपनी कास्टिंग पे। मुझे उम्मीद नहीं थी यार कुछ आएगा रिप्लाई इनका, बट भाई ने 5 मिनट के अंदर रिप्लाई किया। 2 दिन के बाद शेड्यूल हो गया इंटरव्यू भी हो गया। हाँ, मैंने देखा है। मैंने कहा यार ये चीज मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि यार पता नहीं पूछूंगा मना कर देगा सामने वाला, तो मैं बोलता हूँ नहीं पूछोगे तो ऐसे ही मना है, वो मना ही है। पूछ लो तो शायद हाँ हो सकता है। बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली, मतलब नो डाउट अबाउट दैट इसका। बिल्कुल यार, मतलब मेरे ख्याल से बहुत चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, बात और जो करने से तुमने सॉर्ट हो बताया ना जाता है कि यार। इवेंट वाला कि एक दिन में लगातार आज हाँ, 1.5 घंटे में 3 इवेंट किया। वैसा जब मैं इवेंट्स कराता था तो मैं स्टार्टअप दिल्ली के भी इवेंट्स कराता था, डिजिटल ओशन के भी इवेंट्स कराता था, फेसबुक कम्युनिटी सर्कल जो सारांश है उसमें उसका भी हेल्प करता था मैं। प्लस और भी दिल्ली की सारी कम्युनिटीज जो हैं वो तो जानते हैं, स्टार्टअप वाले तो सब जानते हैं, प्लस टेक वाले भी जानते हैं, गूगल वाले भी। तो ऐसा होता था कि मतलब एक इवेंट में करा रहा हूँ सीपी में, एक करा हूँ लाजपत नगर में, और कभी सीपी से मैं लाजपत नगर जा रहा हूँ, लाजपत से सीपी में आ रहा हूँ। तो उस टाइम में लगता था यार, मतलब वो इवेंट्स करा के लगता था, लोगों से मिलकर लगता था कि यार ये इससे पैसे तो नहीं आ रहे मुझे लाइफ में, बट सेटिस्फेक्शन बहुत आ रहा है, मजा बहुत आ रहा बहुत। है। क्या नींद आती थी, नए लोगों से हाँ, मिलके आओ, उस दिन की नींद अलग होती है, नहीं? ये मतलब बहुत लगता था कम कि लोगों यार को समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ये मेरे ख्याल से सब कुछ समझ नहीं पाएगा। आई डोंट नो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जो नहीं, ये फ्लेवर। हाँ, जो पीपल्स पर्सन होगा जो समझता है कि लोगों से मिलने का क्या मजा है और नेटवर्किंग का क्या मजा है, वही समझ पाएंगे। अलग एक्साइटमेंट है, अलग एक्साइटमेंट है, अलग दिन निकलता है, मैं खुश होता हूँ मैं कि मतलब वाह, आज तो बढ़िया लोगों से मिलके आ गया चार। तो तो ये तो मेरे है। ख्याल से इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। बिल्कुल, पारस भाई का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका घर का एड्रेस, उसको भी बिल्कुल, बिल्कुल। पारस को पिन कर लेगा। तो ये फाइनली पारस की लाइफ जर्नी थी और ये अभी क्या कर रहा है पारस, उसके बारे में हमने बात किया आज। वो पारस आपको मजा आया होगा आज के दिन का यार, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल, आधा घंटा या 45 मिनट का प्लान किया था मैंने, बट ये 1 घंटा 6 मिनट हो गया। दो बातें करने वाले लोग बैठे हैं तो टाइम तो निकलेगा भाई। चलो यार, थैंक यू पारस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू भाई। बिल्कुल। टाटा।